for people to join in. कितने जने आ चुके हैं? हम 26 हैं अभी. Okay, that's good enough. सबसे पहले तो सीमा जी को नमस्कार. नमस्कार. We are all looking forward to your meeting today. पर before we start the actual meeting, एक announcement मैं करना चाहूंगी अपने members के लिए. जी. That is कि हमारा इस बार garden competition, flower show नहीं हो रहा है नोएडा का, लेकिन instead of that to keep up the spirits और जो हम लोगों ने सबने मेहनत की है इतने महीनों में, बल्कि आई थिंक ज्यादा की है क्योंकि बाहर आना जाना बंद है, तो इसलिए we have done a lot of research on the net also, and we have tried to make our gardens even more beautiful. So at this point I would like to request all our members, including Seema ji, I shouldn't be fooling around. Gardens जो हैं हमारे साथ share करें by way of virtual garden judging. We are having a garden competition. जो हमारी usual categories हैं वही हैं. दीपा जी ने 2 बार post भी किया है उसके बारे में. There is a poster also. The joining fees is also the same because we will deploy a panel of judges for the judging. And ये judging होगी 20 से 28 फरवरी के बीच में, जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट को 8 से 10 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा, जहां जजेस उनके साथ जुड़ेंगे और वो देखेंगे उनके गार्डन्स को, उनकी हाइलाइट्स बताएंगे, एंड देन द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड लेटर. तो आफ्टर द जजिंग हैज बीन डन, ईच मेंबर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अबाउट हाफ अ मिनट to 1 minute का वीडियो एट द मोस्ट, अपने गार्डन की हाइलाइट्स लेके, और 2 कोई या पिक्चर्स अच्छी अपने गार्डन के स्पॉट की लेकर के वो हमको पोस्ट करेंगे. We will then share it on the FSN page so that हमारे members जो हैं वो सब देख पाएं कि कितना सुंदर सबने अपने gardens को बनाया है. And there is no limit to learning from everybody. हर समय हर जने को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है हमको. So please do join in and put your queries onto the FSN page so that we can answer your queries and the forms can be filled in. Not taking much time now, Seema ji, I can see कि आपने बहुत अच्छा spread लगा रखा है. ये तो अच्छा है कि हम लोगों ने अपना lunch किया हुआ है, इसलिए उतना हमको temptation नहीं होगा. But definitely we are all looking forward to learning from you. तो मैं अपने members को थोड़ा सा आपका introduction दे दूं सीमा जी, कि एक तो आप हमारी not so new but member बन गई हैं हमारी, and welcome to Floriculture Society on as a member also. And secondly, as हमको सिखाने के लिए जो आपके पास इतना बड़ा भंडार है, उसका वो तो अथाह है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि इतना कुछ है. And I had the opportunity of hearing you when रचना जी ने अपना सेशन किया था on juices के ऊपर में, raw juices के ऊपर, and it was amazing. और दीपा ने भी आपको बहुत बार सुना है, तो we thought why not have you impart your knowledge to us, you know, by way हर एक चीज हम according to season करेंगे. And आपके बारे में जो मुझे थोड़ा बहुत आपके थ्रू ही पता चला है कि you have been a landscaper and a gardening consultant since the last 48 years, which is a lifetime. You are also a cookery expert and a yoga acharya, and you've been practicing and teaching in India and internationally also. Besides this, your forte is also your naturopath expertise, and you are a dietitian, जो कि हमने आपके जूस थेरेपीज में भी हमने काफी कुछ सीखा आपसे. तो आज हमने उसी लाइन में लेते हुए, क्योंकि ये सैलेड का सीजन है, बहुत लोग ऑर्गेनिक सब्जियां और अपने घरों में सारा बागवानी कर रहे हैं और बहुत कुछ बना रहे हैं, उगा रहे हैं. So you are going to tell us about the nutritional value of salad and give us a demo on how to make good salads and dressings also. So over to you, Seema ji, and we really hope to have an enjoyable session. And
आई थिंक शाम को हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी कि अपना सैलेड कैसे बनाया जाए, क्योंकि हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपकी रेसिपी ही आज शाम को ट्राई की जाए. So over to you, Seema ji now. नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच मंजू एंड थैंक यू वेरी मच दीपा. आप लोगों ने मुझे बुलाया और I was very reluctant, you know, to show you the things because we don't have the full timers because of these things. And my husband told me that he'll prepare, he'll help me. How sweet. हाँ, but he wasn't feeling quite well. तो वो सब मैंने सिंगल हैंडेड किया है. और एक्चुअली मैं 3 सैलेड आपको बताने वाली थी, पर थर्ड की मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत टाइम लगा थी, तो इसलिए मैं आपको उसका सब चीजें हैं मेरे पास में, मैं आपको वो दिखा दूंगी उस तरह से. तो हम सबसे पहले जब सैलेड की बात करते हैं ना, तो हमारे इंडियन स्टाइल के खाने में सैलेड का इतना महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो खाना है इंडियन खाना वो बिल्कुल कंप्लीट है. और हम ऐसे जैसे कचूमर खा लिया या फिर उसको काट कूट के खाने के साथ प्याज और खीरा वगैरह खा लिया, वो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले था. लेकिन जैसे कि अब धीरे धीरे सब लोग बाहर की कंट्रीज में भी जाने लगे हैं, बाहर के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि काफी घरों में बहुत सालों से सैलेड का प्रचलन चल पड़ा है. तो अब सैलेड है क्या चीज और एक कंप्लीट सैलेड क्या है, मैं आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि एक तो एक सिंपल सैलेड, मतलब इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी पहले जो चलन था वो बिल्कुल सिंपल सैलेड का था, मतलब सिर्फ ग्रीन्स का, और उसके अलावा और कुछ नहीं डालते थे वो. लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज किया, उसमें बहुत सारी चीजें कच्ची भी डाली और उन्होंने बहुत सारी चीजें पका के भी डाली, पोल्ट्री, ग्रेन्स, ये भी सब इसमें उन्होंने डालने शुरू किए, एंड इट बिकेम लाइक ए कंप्लीट मील. तो ये जो सैलेड का बहुत ही एक स्पेशल है ये इसमें, क्योंकि इसकी जो फ्लेवर है, एक चीज की फ्लेवर आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई शेफ है जो कि 2-3 तरह के फ्लेवर उसमें डालता है, तो वो फ्लेवर सारे क्लैश होते हैं, और जो क्लैश होते हैं तो फिर खाने में मजा नहीं आता. आप देखते हैं कि हमारे खाने में भी फ्लेवर का बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो इसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि एक ही फ्लेवर उसके अंदर रहे. और सिंपल सैलेड जो वो है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है. उसमें हमारे जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. अब एक्स्ट्रा वर्जिन के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि फर्स्ट कोल्ड प्रेस से किया हुआ ऑलिव्स का जो निकालते हैं, फर्स्ट कोल्ड प्रेस इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. फिर उनका सेकंड जो प्रेस निकलती है वो वर्जिन, और थर्ड वाली जो कुकिंग के लिए जो हम ऑलिव ऑयल कई लोग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं. तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कैन बी ईटन रॉ, एंड वैसे तो उसमें कोई बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होती है, उसका कलर भी एकदम ग्रीन होता है. और उसमें क्या है ना कि आपको ये बाहर नहीं रखना चाहिए. इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि यदि हम बाहर रख देते हैं तो उसमें वो रेंसिड हो जाता है, उसकी उसकी फ्लेवर बहुत खराब हो जाती है. तो आपको जितना करना है वो जम जाता है फ्रिज में, तो आपको जितना इस्तेमाल करना है आप थोड़ा सा निकालिए और फिर उसको रख दीजिए. तो इस तरह से इसका क्योंकि मैंने भी ये ट्रायल एंड एरर से सीखा है, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं. तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर एंड हनी, ये बिल्कुल बेसिक. यदि हनी आप नहीं इस्तेमाल, कई लोगों को हनी से एलर्जी भी होती है, तो उसमें नेचुरल शुगर जो अनपॉलिश शुगर है वो आप डाल सकते हैं थोड़ी सी. तो इसके बस ये बेसिक सैलेड का तो यही है आपका. लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे इम्प्रोवाइज करते गए लोग, तो उन्होंने उसमें तरह तरह की ड्रेसिंग यूज करनी शुरू करी. उसके बाद में मेयोनीज, थाउजेंड आइलैंड सॉस और बहुत सारी चीजें उन्होंने करी. लेकिन वो मैं यहाँ पे आई डोंट सजेस्ट मेयोनीज वगैरह, क्योंकि वो जो है ना वो आपका आपने नहीं बनाया. यदि आपने भी बनाया तो उसमें इतने अंडे, और बिना अंडे का भी है तो तेल वगैरह करके ना वो फ्रेश नहीं आपका रहता. तो उसमें हम लोगों को यहाँ पे एम्फेसाइज करना है कि सब चीज बहुत ही फ्रेश होनी चाहिए. तो इसमें सिंपल सैलेड के लिए तो मैं जैसे ये लेटस मैं लेकर आई हूँ, तो ये लेटस जो है सिंपल वाली है, जो कि आपने देखा लाल रंग की भी होती है, एक एक रॉकेट सैलेड भी होती है जिसमें थोड़ी थोड़ी मूली जैसी खुशबू आती है. अब उसको अरेगुला सैलेड भी कहते हैं, वो काफी अच्छी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है. और ये एक होती है आइसबर्ग, जो आपने देखी होगी, जैसे
एकदम राउंड जैसी, जैसे कैपेज जैसी होती है, वो आइस ना वो काफी क्रिस्प होती है, उसमें काफी सारा पानी होता है, वो 1-2 दिन तक रह सकती है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप सैलेड वो आप उसी दिन कंज्यूम करें। यदि सपोज आपके बहुत सारी हैं और आप उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बिना धोए ब्राउन पेपर में अच्छी तरह से लपेट के उसको फ्रिज में रखिए। और यदि फिर भी आपको लगे, क्योंकि देखिए सैलेड तो क्रिस्प होना चाहिए, फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सा लिम्प हो गया है, तो आप उसको आइस कोल्ड वाटर में, आजकल तो खैर आइस कोल्ड वाटर की जरूरत नहीं है, वैसे भी आइस कोल्ड आ रहा है, तो उसमें आप डाल दीजिए और वो एकदम ठीक से वो विल्ट जो होंगी वो एकदम से पक अप हो जाएगी। तो उसको ये आपका है कि क्रिस्प होनी चाहिए। तो और जैसे आजकल हम लोग धो रहे हैं, सिरका भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, उसके अंदर आप बढ़िया से धो के जो भी उसके जर्म्स वगैरह हैं, बैक्टीरिया हैं, वो तो हम लोग अब सब कर ही रहे हैं। तो लेकिन सैलेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम 5-7 मिनट तक उसके अंदर वो पत्तियां भीगी रहे और एकदम क्रिस्प हो जाए। और इसमें यह है कि जब आप खाने लगे, जब आपको सैलेड, जैसे आपको पता है कि आधे घंटे में आप सैलेड खाएं, तो उसको आप अच्छी तरह से धो के, 2-3 पानी से धो के, फिर उसको अच्छी तरह पैट ड्राई करें। जो किचन टॉवल है या आपका कोई अच्छा सा नैपकिन है, उससे पैट ड्राई करें। उसका उसमें पानी का अंश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। यदि पानी का अंश रहा उसमें, तो आपकी जो ड्रेसिंग है वो एकदम गीली हो जाएगी, वो और भी ज्यादा लिक्विड ही हो जाएगी। तो उसमें वो, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हर पत्ती और हर चीज के ऊपर उसकी ड्रेसिंग का कोट होता है, तो उस पर ठीक से कोट नहीं होगा क्योंकि उसमें पानी रहेगा। तो ये तो फर्स्ट चीज हुई आपकी। और आप देख लीजिए, ये तो आप सब जानते ही हो कि फिल्टेड वाली नल है, कोई काले दाग वाली नल है, ब्राउन वाली नल है, उनको पत्तों को जब आप खरीद भी रहे हैं तो आप बी वेरी केयरफुल कि कौन सी पत्ती इसके लिए ठीक है। तो ये ज्यादातर लोग आइसबर्ग को इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि वो कुछ दिन तक रह जाती है क्रिस्प, तो उसमें कोई हरज नहीं, दैट इज योर चॉइस। और आई होप किचन गार्डन में तो आप सब लोग उगा ही रहे होंगे फ्रेश, तो उसी टाइम आपने तोड़ी, इस तरह से करके आपने रखी। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी उसमें ये भी आपको बताऊंगी कि अब ऑयल भी हम कई तरह का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम तिल का ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो आपका लेकिन जो भी मैं आपको बता रही हूँ कच्ची घानी, उसमें कोई ये कोल्ड प्रेस होने चाहिए। यदि तिल का तेल भी, एक मेरी जो क्लाइंट थी वो तो सरसों का तेल भी, तो ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि तेल तो इसमें जाएगा ही जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको जो भी इसमें, जैसे मैं सॉल्ट आप डाल रहे हो, तो सॉल्ट आपका नेचुरल होना चाहिए, जो आप पिंक सॉल्ट या हिमालय सॉल्ट जो आता है, आप जो सी सॉल्ट है वो नहीं डालें, तो उसमें ये डलेगा। और जो काली मिर्च है वो आपकी फ्रेश होगी, उसमें यदि आपका ग्राइंडर है काली मिर्च वाला तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आप जरा सी पीस के रखें, और क्योंकि उसमें फ्लेवर बढ़िया होना चाहिए। तो ये चीजें तो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, दूसरे ये जो सैलेड की ड्रेसिंग मैं आपको करके बताऊंगी प्रैक्टिकल में, तो उस ड्रेसिंग को यदि आपने जितनी आपको जरूरत है उतनी आप डाल लीजिए, और बाकी उसको बॉटल में फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर दफा आपको नया बनाना पड़े, तो वो आपका हो गया। अच्छा, दूसरे क्या है ना कि इसमें हम लोग फूल भी डाल सकते हैं, जैसे पत्तियां तो आपने मैंने आपको लेटस के बारे में बताया। अब ये लेटस के अलावा मैंने ये बॉक चॉय भी रखा हुआ है, बॉक चॉय भी जो नरम वाला है, क्योंकि इसमें कई पत्ते काफी हार्ड हो जाते हैं, वो तो आप स्टर फ्राई करके यूज कर लीजिए। तो इसमें बॉक चॉय भी आप डाल सकते हो। इसमें नेस्टेशियम की लीव्स है, नेस्टेशियम की लीव्स भी एडिबल है, इनको भी आप डाल सकते हो। इसमें मैं अभी आपको बताऊंगी, 2 टुकड़े करके आप उसको भी डाल सकते हो। तो इसमें ये आपकी चॉइस है हरे लीव्स की। इसके अलावा आप इसमें फूल भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने नेस्टेशियम के फूल यहाँ रखे हैं, वो मैं आपको भी बता रही हूँ। लेकिन ये एडिबल फ्लावर है, फूल भी आप डाल सकते हो। जैसे कि सरसों के आपके फूल आ रहे हैं, मूली के फूल आ रहे हैं, किसी भी सब्जी के जो फूल आप आ रहे हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हो। इसके अलावा जो मटर मटर के जो कोमल वाले पत्ते होते हैं, जो ऊपर से टेंड्रिल होता है और कोमल पत्ते होते हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये मतलब ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें क्या डालना पसंद करते हैं। तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसके अलावा सैलड जो मैं 2 आपको बताने जा रही हूँ, एक तो सिंपल सैलड है विद ग्रीन्स, दूसरा जो सैलड है, ये जो सैलड है वो
अब ये हम सोचते हैं कि भाई ये कब खाएं। तो जब आप खाना खा रहे हैं उससे पहले आपको खाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो हमारा खाना है वो तो अभी गया नहीं पेट में। जैसे ही आप ये सैलेड खाएंगे तो एकदम गैस्ट्रिक juices are sitting idle, they will turn towards it and they will be able to digest it better. तो इसमें आप पहले उससे स्टार्टर जैसे आप ये शुरू करें। कई लोग जो उस पे डाइट पे जाते हैं वो तो सिर्फ सैलेड ही खाते हैं, लेकिन आप अपने खाने के पहले ये खा सकते हो। और दूसरा जो सैलेड जो मैं बता रही हूँ वो हमारा है जिसमें कॉम्प्लेक्स सैलेड हमको बोलते हैं। ये तो सिंपल सैलेड है। कॉम्प्लेक्स सैलेड में आप कुछ भी डालो, जितनी भी सब्जियां हैं वो डालो सारी, और उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे भी वो पत्ते, रंग बिरंगे आपके फल, वो कुछ भी उसमें आप डाल सकते हो। और इसमें जैसे कि अनार देखने में अच्छा लगता है तो अनार आप उसमें डाल सकते हो। इसके अलावा आपके गांठ गोभी है और मूली है, लाल मूली है, वो सब हम डालेंगे। अब क्योंकि हम इसको खाने के बदले खा रहे हैं तो इसमें प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन के लिए हम स्प्राउट डालेंगे, स्प्राउट भी डालेंगे और हम पनीर भी डाल सकते हैं। तो स्प्राउट के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि स्प्राउट जो है आप यदि घर में बना रहे हैं तो आप उसको उसको ब्लांच करना चाहिए। ब्लांच मतलब उसको खौलते पानी में डाल के निकालना, क्योंकि जब हम स्प्राउट मेकर में भी बनाते हैं या उसको पोटली में भी बांध के बनाते हैं तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया पैदा होता है। क्योंकि वो 12 घंटे 10 घंटे तक तो बंद रहेगा, तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं। स्पेशली जो यूटीआई का जो सोर्स है वो इससे भी आता है। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें कि उसको हल्का सा बॉइलिंग पानी में डाल के निकाल लें। यदि वैसे नहीं करना है जो मैं करती हूँ, वो थोड़ा सा आप तेल डालिए कुकर में और उसमें आप ढक दीजिए। उसको विसल नहीं देनी है, भारी बर्तन है इसलिए हम उसको ढक के रख देंगे और थोड़ा सा नरम हो जाएगा तब आप उसको निकाल लें। तो उसी के अंदर पानी नहीं, पानी जरा सा आप थोड़ा सा डालें, पानी इससे नहीं निकालना है, उसको उसी में ही आप इस्तेमाल करें। एंड यू कैन हैव इट विद योर ब्रेकफास्ट और मील और इन योर सैलेड आल्सो। तो ये इसकी स्प्राउट के बारे में ये बहुत ही आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया कि वो कच्चा खाते हैं। कच्चा नहीं खाना चाहिए, उससे नुकसान होगा, ज्यादा फायदा नहीं। तो इसमें आप स्प्राउट भी डालो। यदि नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन या जो भी आपका हैम पैम जो भी खाते हैं वो उसमें डाल सकते हैं। तो ये अच्छा, इसके अब देखिए हम इसमें रोटी या चावल तो नहीं खा रहे हैं, तो इसमें क्या हम डाल सकते हैं, इसमें जौ डाल सकते हैं। जौ जो निकला हुआ ऊपर से हस्क निकला हुआ जौ आता है, उसको बॉईल करके उसमें डाल सकते हैं। अनाज के बदले आप देखिए मैंने ये रखा हुआ है, ये नॉट मेनी पीपल हैव सीन दिस। दिख रहा है आपको, ये वाइल्ड राइस है। दिस इज वाइल्ड राइस, ब्लैक कलर का दिखा। हाँ जी, दिखा। हाँ, तो ये वाइल्ड राइस है। ये आपको ना उसमें कुकर में उबालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये। तो इसको भी आप उसमें डाल सकते हो। यदि आपके पास में रेड राइस है, जो कि साउथ का रेड राइस है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। गेहूं भी आप डाल सकते हो। गेहूं को आप उसको फुला लेंगे, उसको भिगो लेंगे, उसके बाद में उसको बॉईल करके उसको भी आप डालेंगे। और प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, मिनरल्स आ गए सारे। इसमें नट्स भी आप डाल सकते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स सैलेड में आपका एक कंप्लीट मील होगा। यदि खाने के बदले जो आप चावल रोटी या जो भी टोस्ट वगैरह जो खा रहे हैं उसके बदले हम एक कंप्लीट मील जैसे भी सैलेड को खा सकते हैं। तो ये मैं आपको दो बताऊंगी उसमें। अच्छा, जो कंप्लीट मील जैसा सैलेड है उसमें स्टर फ्राई वेजिटेबल भी डाल सकते हो। ब्रोकली डाल दो, मशरूम डाल दो, यू नो, एवरीथिंग यू कैन हैव। तो ये तो मैंने अच्छा सर देखिए मैंने एक इसमें लिया था। देखिए सर्दियों में तो कितनी सारी चीजें आपको मिलती है, गर्मियों में बहुत कम चीजें मिलती है। तो गर्मियों के सैलेड का मैंने एक दूरदर्शन के लिए वीडियो किया था, वो मैं आपके उसमें भेज दूंगी। तो आपको मतलब गर्मियों में क्या मिलता है उसके हिसाब से वो सैलेड। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ वो सर्दियों का सैलेड है। तो इसमें ये हम अब तेल का मैंने आपको बता दिया, ड्रेसिंग का मैंने आपको बता दिया। ड्रेसिंग भी जैसे आज मैं दूसरी ड्रेसिंग हंग कर्ड के साथ बनाऊंगी। तो हंग कर्ड जो है एक, उसमें तो कैलोरी नहीं है इतनी, बहुत कम कैलोरी है। और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हम फ्लेवर के लिए डालेंगे। वो जब मैं आपको बताऊंगी तो मैं सारा डिटेल में उसका बता दूंगी। और बाकी आपकी चॉइस है। कई लोग जैसे कहते हैं कि हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल देते हैं उसमें। तो यदि आपका घर का बना हुआ है, यदि उसमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है
तो आपको नहीं यूज करना है। अब तो कई लोग को मैंने देखा है कि घर में बनाते हैं टोमेटो सॉस, उसमें प्रिजर्वेटिव होता ही नहीं है, तो टोमेटो सॉस भी आप उसमें डाल सकते हो, उसमें चिली सॉस भी थोड़ा सा डाल सकते हो इफ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ तीखा खाना, तो वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल ये बताने वाली, तो excuse me। अच्छा, इसके अलावा हम जैसे सफेद चना, काला चना, लोबिया, राजमा, ये भी हम डाल सकते, मतलब जो भी आपको उस टाइम लगता है कि हमको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसमें ये सीड्स भी इसमें सारे हम लोग डाल सकते हैं। इसके अलावा उसमें आप अखरोट डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, तिल डाल सकते हो ड्रेसिंग के लिए, और क्योंकि ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये दिस इज योर चॉइस। मैं तो ये जो आपको हाथ लगे, मतलब जो आपको हाथ लगे वही इसमें डाल दो। दैट इज द बेस्ट। उस टाइम जो आपको सूझे कि चलो ये भी डालें, तो वो डाल सकते हो आप। मतलब जनरली मैं वही करती हूँ, जो मुझे सामने दिख गया वही डाल। तो अभी हम इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे हम लोग तैयार करेंगे। तो इसमें ये तो मैंने, ये सिंपल वाला सैलेड है, इसको तो मैंने अच्छे से धो के, और इसके देखिए इसके हम हाथों से काटेंगे इसको ना, इससे नहीं काटेंगे, चाकू से नहीं काटेंगे, या आप हाथों से काटिए और हाथों से तोड़िए इसको, बाइट साइज पीसेस जितने आप खा सकते हो, बाइट साइज पीसेस में हम लोग इसको काट लेंगे, मतलब तोड़ लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं हो और चाकू से नहीं काटे, इसमें रफली कटेगा, तो वो दैट इज रियली द बेस्ट। अब देखिए हमारे पुराने जमाने में क्या, हमारी दादी वगैरह हमको कहती थी कि देखो बथुआ में चाकू नहीं लगाना चाहिए, हाथ से तोड़ना चाहिए, तो मे भी उसमें काफी कुछ सेंस होगा। तो ये तो मैंने तोड़ लिए, देखिए ये सारे तोड़ लिए। इसमें मैंने ये बॉक चॉय की पत्तियां हैं, वो भी मैंने धो के उनको पैक ड्राई करके, उनके भी हम दो दो टुकड़े, जितना हम एक दफा खा सकते हैं उसके दो दो टुकड़े करके इसमें भी डाल। अब ये नेस्टेशियम की पत्ती है, इसको भी मैं तोड़ लूंगी। इसका जो स्वाद है ना नेस्टेशियम की पत्ती का, वो मूली के पत्ते जैसा होता है, और इसको आप स्टर फ्राई भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ऑफ द सब्जेक्ट है, लेकिन ये कई लोग मुझे पूछते हैं, जब आप नेस्टेशियम की थिनिंग करते हो ना, तो क्योंकि आपको फूल ज्यादा चाहिए, तो आप इसकी पत्तियां निकाल के फेंक देते हो, फूल ज्यादा चाहिए, लेकिन जो पत्तियां फेंकिए मत, आप उनको अच्छे से धो के उनको स्टर फ्राई करके उनको खा सकते हैं। तो ये मैं ये पत्तियां भी डाले दे रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने टमाटर डाला है, यदि चेरी टमाटो है आपके पास में तो चेरी टमाटो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बेसिक बेसिक जो सैलेड है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये भी हमने डाल लिया। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताना भूल गई कि जिसमें भी आप बना रहे हैं ना, वो आपका स्टील का या इसका नहीं होना चाहिए, किसी और चीज का। ये आपका बोल है, या तो सिरेमिक का होना चाहिए या बेस्ट है लकड़ी का। और जब आप इसको टर्न करेंगे, कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी, तो लकड़ी के चम्मच से करेंगे, उसमें स्टील या प्लास्टिक का चम्मच नहीं लीजिए। तो इसमें हमेशा, जैसे कि ये देखिए यहाँ मैंने रख रखा है, ये लकड़ी के चम्मच है दोनों, सैलेड स्पून, उनको अप टर्न करने के लिए, ठीक से बता देते ये। तो ये आप हमेशा उससे अप टर्न करें। और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। अच्छा, फिर ये बेसिक खीरा, खीरा तो आप सब लोग जानते हो। खीरा, टमाटर देखिए ये हाई इन आयरन, और इसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन ए है। ये तो आप जानते हो, विटामिन ए जो है रेड एंड ग्रीन के अंदर ज्यादा होता है। तो ये इसके अंदर भी जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है कि इसमें बहुत फॉलिक एसिड है, बहुत ज्यादा आयरन है, और फाइबर तो है ही है। तो जो भी व्यक्ति एनीमिया है या क्या, उसको ठीक से मतलब बहुत कमजोरी है, तो उसके लिए ये ग्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अभी मैं इसमें ये डाल रही हूँ खीरा। ये खीरे के भी, इसमें जितने भी आप इसके पीसेस करोगे ना, बड़े बड़े होने चाहिए पीसेस,
तो छोटे छोटे पीसेस होंगे तो उसका पानी भी निकल जाएगा, और पानी निकलने से आपकी ड्रेसिंग एकदम पतली हो जाएगी। तो ये आपने डाल दिया खीरा, इसको भी धो के अच्छे से। और खीरे तो आप जानते हो कि ये बहुत ठंडा होता है। वैसे गर्मियों का जो खीरा है वो तो बेस्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन अभी भी जो खीरे आ रहे हैं तो वो भी ठीक आ रहे हैं। तो इसमें तो हाई पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। जूस थेरेपी में मैंने बताया था कि इसका जूस पीने से ना वाटर रिटेंशन और किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करता है ये। तो ये हमने डाल दिया। अभी हमने क्या डाला, अच्छा फिर हम इसको, इसकी ड्रेसिंग बनाऊंगी अपने। Your neighbors will be very happy people to get the salads today, huh? नहीं नहीं, मैं किसी के नेबर को नहीं देती। दीपा के घर भिजवा दीजिए मैम। गुड़गांव से यहाँ तक मैं पिज सर्विस को बोलती हूँ, लेते आएंगे। हाँ, अरे घर में मेरे हस्बैंड है, माय सन इज देयर, वो सब खा खो के खत्म कर देंगे। अरे दीपा तुम्हारा पत्ता कट गया, खत्म। नहीं, मेरे घर में खूब सैलेड है, मैं खुद ड्रेसिंग बना के खाऊंगी आज। अच्छा वेरी गुड। तो देखिए ये मैंने डाल दिया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसके अंदर। एक बॉटल आप ले लीजिए, बॉटल में हम लोग ड्रेसिंग बनाएंगे। ये डाल दिया, फिर क्या डाला, हाँ ये फिर देखिए इसके लिए भी मैंने लकड़ी का चम्मच रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा आप डाल दीजिए सॉल्ट, ज्यादा नहीं, बिल्कुल कहाँ गया, हाँ इसी में। इसमें मैंने ये ब्राउन शुगर, और ये मैंने काली मिर्च फ्रेश करके ये मैंने रखी है, थोड़ा अपने स्वाद के हिसाब से डाल, बस ये बेसिक, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। और इसको हम बंद करेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको शेक करें। ये शेक करने से ना इमल्शन जैसा हो जाता है। तो ये अब देखिए तिल ऑयल की भी बहुत अच्छी बनती है, मैंने बना के देखी है। तिल ऑयल आप ये जो कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का तिल का तेल लेके उसमें भी आप बनाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा तेल यूज करना चाहिए कुकिंग के लिए। तो कुकिंग के लिए तो मैं ये कहती हूँ कि जहां आप रहते हो ना, और जहां जो चीज हो रही है वो इस्तेमाल करो। जैसे कि अब जैसे साउथ में तो कोकोनट ऑयल में बनता है, तो आई विल गिव माय हस्बैंड टू शेक इट प्रॉपर्ली। लाल सितारा डूइंग इट्स वर्क। हाँ थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, लाल सितारा इज नोन फॉर वर्किंग। बन गया, मिक्स हो गया सब अच्छे से। अभी इसका जो थंब रूल है उसमें हम क्या करेंगे कि इसको साइड से डालें। ये जो भी ड्रेसिंग आपकी बनी है उसको साइड से डालेंगे, और सबसे नीचे वाले जो है हिस्सा उसमें सबसे पहले जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको अपटर्न करेंगे, इसको नीचे वाले को ऊपर लाएंगे और ऊपर वाले को नीचे लेकर जाएंगे। इसीलिए तो हमको ये सैलेड स्पून चाहिए होते हैं। और जब तक पूरा कोट हो जाए हर पत्ती के ऊपर, हर चीज के ऊपर ये फर्स्ट क्लास तरीके से कोट हो जाए, तब आप इसको, तब ये खाने का मजा है। तो लेकिन आप देखिए जब आप खा रहे हो ना उसी टाइम आप इसको डाल, क्योंकि यदि आपने पहले करके डाल दिया तो सॉल्ट है ना तो पानी छोड़ देगा, वो फिर अच्छा नहीं रहेगा। वैसे माय हस्बैंड डज दिस, ये जो अपटर्निंग है ना वही करते हैं, इनकी ड्यूटी यही करने की है। ये कह रहे हैं मैं ठीक ही नहीं कर रही। ये जब मेरी डेमो क्लास भी होती है ना, अब तो खैर नहीं, तो यही करते हैं। मेरे ख्याल से तो कोट हो गया सारा। देखिए जब तक मिस्टर सूद यस नहीं करेंगे तब तक आप स्टर करते रहे। तो ये सिंपल सा सैलेड है, और इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसको सजाने की बारी है। देखिए ये नेस्टेशियम के फूल मैंने लगा के रखे हैं यहाँ पर, नेस्टेशियम। ओह वाओ, लवली कलर।
या तो ये इसमें हम ये मैंने धो के रखे हैं अच्छी तरह से, और आप बस इसको ऊपर सजाने की, क्योंकि दिस इज एडिबल फ्लावर। एक्चुअली नेस्टेशियम इज वेरी हार्डी फ्लावर, एंड आप एक दफा बोगे ना, फिर आपको बीज लेने की जरूरत नहीं है, ये बीज अपना गिराता रहता है और वहां हर साल अपने आप निकल आता है। अब देखिए सजाने का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे सजा रहे हो। इसका देखिए पत्ती भी खाई जाती है नेस्टेशियम की, और इसके बीज जब हरे हरे होते हैं ना तो उसको पिकल कर सकते हैं हम, उसको भी खा लेते हैं। ठीक हो गया भाई? Looks very आपको दिख रहा है? appetizing. दिख रहा Yes, है? very appetizing. हाँ दिख रहा है मैम। ठीक है, तो ये तो Very हमारा nice. एक सिंपल सैलेड हो गया, ठीक है ना? तो इसको तो हम एक तरफ रखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए मैंने जो ये डाला था, इसमें मैंने नींबू डालना मैं भूल गई, दिस इज माय मिस्टेक। हम इसको और भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें नींबू के बदले देखिए ये भी एक नींबू है एक प्रकार का, मैं आपको दिखाने के लिए रखा है, किसी के फार्म से आया ये। अच्छा, इसमें ये टेंजरीन है, ये आपकी चाइनीज ऑरेंज है, उसको भी हम निचोड़ के इसमें डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं। इसको हमको काटना नहीं है, ये जो है ना इसको आपको काटना नहीं है, इसको आपको ऐसे ही छेद करके और तब इसको डालना है उस ड्रेसिंग में, ऐसे करके, जिससे उसका क्या होगा, इसका जो छिलके का फ्लेवर है ना वो भी इसके साथ में आ जाएगा। तो ये मैं बाय मिस्टेक आई शुड हैव पुट दैट फॉर द ड्रेसिंग। ये लो, खुशबू बहुत अच्छी इनको नहीं आती। है। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। तो उसमें हम क्या करेंगे कि इसको हटा लेते हैं। इसमें भी मैंने थोड़ी सी पत्तियां ले ली है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग काट लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड करने वाले हैं। जो भी हार्ड पोर्शन है वो भी मैं निकाले दे। But can we use cos as well as romaine lettuce for these salads? या iceberg ही best है? नहीं नहीं, आइसबर्ग तो देखिए हार्ड वाला, इफ यू लाइक दैट, ये अपने अपनी अपनी टेस्ट की बात है, क्योंकि आइसबर्ग वाले में काफी पानी भी रहता है, जल्दी से विल्ट नहीं होता है। और ये वाला जो लूज लीफ है, लूज लीफ वाला मैं तो ज्यादातर लूज लीफ वाला यूज करती हूँ। और यदि आरेगुला मिल गया आपको रॉकेट वाला तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, मार्केट में वो बड़ी थोड़ी मुश्किल से मिलता है। चलिए आपको नेक्स्ट टाइम मैं सीडलिंग्स भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, तो ये हमने सारा कर लिया। और नैपकिन दे दो। ये जो आपने अभी ड्रेसिंग बनाई थी सिंपल वाली सीमा जी, ये कितने हाँ जी। दिन तक फ्रिज में ठीक रह सकती है? नहीं, ये तो आपके कम से कम 15 दिन तक तो रहे। इसमें देखिए मैंने नींबू नहीं डाला था, ये मैंने आपको बताया ना, मैं भूल गई डालना। तो इसमें नींबू डाल के और उसको हम लोग ये टेंजरीन को भी इसके साथ ही निचोड़ देते हैं, जिससे इसकी खुशबू चली आए। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये हमने डाला। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें जाने वाली है। एक तो देखिए ये कैप्सिकम है, ये मैंने येलो वाली कैप्सिकम ले ली है। ये रेड वाली कैप्सिकम है, ये बहुत ही कलरफुल हो जाएगा। अब देखिए आपकी अपनी भी चॉइस है कि आपको कौन सा रंग पसंद है, कौन सा आप उसमें डाल रहे हो। जो मैंने बताया ना, जो आपके हाथ लगे वही डाल। ये हरी कैप्सिकम, अभी से देखिए कितना कलरफुल हो गया है। और इसमें देखिए मैंने ये ब्रोकली स्टर फ्राई करके रखी है। ब्रोकली के अंदर हाईएस्ट कैल्शियम होता है, तो लेडीज को तो हमेशा कैल्शियम का तो कमी रहती है,
तो उसमें आप ये ब्रोकली का सूप बनाओ, ब्रोकली को स्टर फ्राई करके खाओ और मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह में खाओ। इसमें बहुत बहुत ज्यादा हरा तो विटामिन ए तो है ही है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम है। इसमें मैंने ये देखिए फ्रेश गाजर आ रही है, वो बढ़िया वाली देसी वाली गाजर है, वो भी मैंने इसके क्यूब्स करके रखे हैं। मैंने ये आपको बताया था ना कि ये सबके थोड़े बहुत बारीक नहीं करने चाहिए, ये छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने चाहिए, थोड़े स्क्वायरिश, और सबके स्क्वायरिश होना तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अभी से ये इतना कलरफुल हो गया। अच्छा, अब हम डालेंगे इसमें गाजर के बारे में आपको बताऊं, विटामिन ए भरपूर मात्रा में आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और ये जितने भी हैं फाइबर तो है ही है, ये तो आप जानते ही। तो ये जूस थेरेपी में हम इसका बहुत ऊंचा स्थान है गाजर। अच्छा, ये मैंने प्रोटीन के लिए, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट मील है, अब हम इसके बाद में रोटी चावल खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे, तो इसके लिए मैंने ये प्रोटीन के लिए मैंने ये ले लिया पनीर, कच्चा वाला पनीर। खुद घर में बनाए तो बेटर है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है इसके अंदर। तो ये ले लिया। नाइस एंड कलरफुल। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने स्प्राउट, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मोठ का स्प्राउट है, मोठ का। तो ये इसमें स्प्राउट भी मैंने डाल दिए, क्योंकि ये तो कंप्लीट मील खा रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, इसमें स्प्राउट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, और नेचुरोपैथी में स्प्राउट का बहुत ही ऊंचा स्थान है, इसको हम कंप्लीट फूड कहते हैं स्प्राउट को। तो किसी भी चीज को आप स्प्राउट कर सकते हो, काले चने को, मोठ को, मूंग को, बहुत चीजों को कर सकते हो। बल्कि आजकल तो ये माइक्रो ग्रीन भी बनाते हैं लोग, माइक्रो ग्रीन भी सैलेड में यूज कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने बीट रूट जो है ना, वो बॉईल करके इसके टुकड़े करके मैंने, ये बीट रूट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत ज्यादा परगेटिव होता है। तो यदि किसी भी चीज में आप डाल रहे हो, जैसे आप सैलेड में हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ी मात्रा में डालेंगे। जूस थेरेपी में भी मैंने आपको बताया था कि 1/4 ऑफ द रूट वी यूज इट, इट्स वेरी हाई आयरन। जिसको भी एनीमिया है, B12 की आयरन की डेफिशिएंसी है, वो इसको जरूर जरूर खाएं। और इसका थोड़ा सा वो है कि आप इसके मैंने कहीं इसके कबाब भी खाए, इसको इन्होंने आलू के साथ मिला के एकदम रेड कलर के कबाब बनाए थे उन्होंने। तो ये आप इसको रायते में भी डाल सकते हो, उबाल के कद्दूकस करके। इसके अलावा उबाल के राई कड़ी पत्ता में आप छोंक दीजिए उसको, और वो भी खाने में बहुत अच्छा होता है। तो इसमें इसको आप अपने तरह से यूज करके डेफिनेटली खाइए, क्योंकि देखिए लेडीज को तो हमेशा एनीमिया होता ही है। कईयों को तो पता ही नहीं है कि उनको एनीमिया, लेकिन वीकनेस होती है या थकान हो जाती है, तो आप सोचते हो पता नहीं क्या हो गया, ज्यादा काम कर लिया इसलिए थक गए। नहीं, वो एनीमिया है, क्योंकि एनीमिया में वर्ल्ड में फर्स्ट है हम, मतलब हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा एनीमिया। अच्छा, ये हो गया, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। अच्छा, इसमें मैंने ये अखरोट भी रखे हुए हैं, तो अखरोट के भी आप कच्चा ही उसको वो नहीं करना है, इसको टुकड़े, कुछ भी नट्स डाल सकते हो जैसे मैंने बताया। तो इसमें मैं अखरोट डाल, इसमें ये खरबूजे के बीज हैं, उसमें उसमें भी बहुत हाई कैल्शियम है। और ये ओमेगा 3 भी इन सब सीड्स के अंदर होता है, जो कि हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। तो ये मैंने क्या किया है, इसको ये कच्चा नहीं है, इसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा 20 सेकंड तक कर लिया है, तो वो थोड़ा सा उसका मॉइस्चर निकल गया, तो इसलिए मैं ये भी इसके अंदर डाल दी थी। अच्छा, ये तिल है, ये तिल को मैंने, जब आप लेते हो ना, तो काला वाला तिल तो खैर नहीं इस्तेमाल करते लोग, सफेद जो धुला धुलाया आता है ना, वो मत लीजिए आप। ये ब्राउन कलर का है, जो कि अनपॉलिश किया हुआ है, वो वाला लीजिए, क्योंकि उसमें जब वो उसको पॉलिश करते हैं ना, तो वो सब निकल जाता है उसके काफी चीजें। तो इसको ये मैंने लिया है, इसको कढ़ाई में थोड़ा सा 5 मिनट चला के तब इसको बॉटल करके रखा है ठंडा करके, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि हम जब ये लाते हैं तिल और ये सब, तो उसमें कीड़ा लग जाता है। तो आप इसका यही तरीका है कि आप इसको माइक्रो में कर लीजिए 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी, और फिर आप उसको या कढ़ाई में उसको भून लीजिए थोड़ा सा, और फिर आप उसको ठंडा करके बॉटल करके शीशे की बोतल में रखिए, जिससे ये बहुत दिन तक चलेगा।
तो ये भी इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये तो मैंने नट्स तो इसमें डाल दिए सारे। ये मैंने दिखाने के लिए रखा है, चिया सीड है ये। आजकल ना इसका बहुत ज्यादा चलन है, और चिया सीड का बॉम्बे में तो लोग, महाराष्ट्रियन लोग हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अभी कुछ रिवाइवल सा हुआ है कि लोग इसके बारे में काफी बातें कर रहे हैं और उसको सुपर फूड कहते हैं। तो चिया फूड का मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें, देखिए, रात में भिगो दीजिए। यदि हम ऐसे डालेंगे ना तो उसका इतना कुछ फायदा नहीं होगा। इसको रेगुलर बेसिस पे डालेंगे तभी फायदा होगा। तो आप इसको 1 बड़ा चम्मच आप रात में पानी के अंदर भिगो दीजिए, सुबह उसको खा लीजिए। चिया सीड खाने का वही तरीका है। अब आपको सजाने के लिए डालना तो वो अलग बात है, लेकिन यदि आपको लगे कि इफेक्ट होना चाहिए उसमें, तो आपको कर दीजिए। अभी मैंने ये अनार रखा था, जैसे मैंने कहा ना, इसमें आप सब कुछ डाल सकते हो, इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, एवरीथिंग। तो ये अनार मैंने रखा है। अनार के बारे में, ये वेरी हाई इन आयरन, वेरी हाई इन आयरन। और इसके अंदर तो यदि आप खा सकते हैं तो इसको इसी के साथ खाएं, बीज के साथ में। और नहीं तो जो लोग, मतलब मेरे जैसे एल्डरली हैं, वो इसका जूस भी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज्यादा आयरन होता है। तो एनीमिया वालों को हम ये देते हैं, तो इसमें ये भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे। इसको हटा दूं, हटो। अब ये देखिए, हंग कर्ड के बदले मैंने ये मैंने नेस्ले का जो है, ये दही है, ये काफी गाढ़ा है। मेरी एक महाराष्ट्रियन फ्रेंड है, वो इसी से श्रीखंड बनाती है। वो कहती है अब हम बांधते बांधते नहीं है, अब हम तो इसका इसी में इतना गाढ़ा है ये कि इसका श्रीखंड बन जाता है। तो इसलिए मैं भी लेकर आई हूँ। मतलब आई एम नॉट डूइंग पब्लिसिटी फॉर नेस्ले, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। हमने डाल दिया। अच्छे से चल लिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डलेगा। सॉल्ट, पेपर, थोड़ी सी मैंने शुगर भी डाली है। यदि हनी है आपके पास तो आप हनी डाल दीजिए। ये थोड़ा सा मैंने पेपर डाल दिया है। सॉल्ट, पेपर एंड लिटिल बिट ऑफ अनपॉलिश शुगर, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। जो फर्स्ट वाला था ना, मैंने आपको बताया ना, मैं भूल गई कि उसमें नींबू जरूर पड़ेगा। यदि आपके पास में यदि नींबू आप नहीं डालना चाहे फ्रेश, वैसे तो फ्रेश ही अच्छा लगता है, तो उसके बदले हम लोग, ये मैंने रखा हुआ बाल्समिक विनेगर भी आप डाल सकते हैं, जो फर्स्ट वाली ड्रेसिंग। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर डालेंगे।
इसमें ये मैंने थोड़ी सी देखी, ये पुदीने की पत्तियां मैंने रख रखी है, तो इसको फ्लेवर के लिए हम पुदीने की पत्ती भी इसमें डाल देंगे, हाथ से ही काट के डाल देंगे उसको। अच्छा, अब इसको मिक्स करो। आंखों के इशारे से ही आपने बोल दिया उनको मिक्स करने। हाँ, ये वाले ज्यादा बेटर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्ते। So nice of you to help her. मिक्स करना है तो बहुत सिंपल, इसको आप टॉप से शुरू करें, साइड से इसको डालें और इसको पलट दें, इसको आखिर तक, बॉटम तक, नीचे तक ले आए। फिर इसी तरह से इसका टॉप से उठाएं और उसको ले आए, टॉप से उठा के इसको बॉटम तक ले आए। अब इसको सरका दीजिए थोड़ा सा, नहीं तो गिर जाएगा, और ऐसा करते जाइए जब तक ऐसा लगे कि कोई ब्रश लेके अपने ड्रेसिंग को, हर एक पत्ती, हर एक फूड आइटम को पेंट किया है हल्का हल्का। Wow, that sounds so good. उसको लेकर और पूरा उसमें उंडेल के और गोल गोल घुमा के न खाइए प्लीज। पतली पतली परत हर एक पत्ती और हर एक फूड आइटम पर आनी चाहिए, तब आपको उसका मजा आएगा। और लाइट में चमकनी चाहिए, जो ड्रेसिंग है थोड़ी सी ऑयल है उसमें, वो शाइन करना चाहिए, ग्लिसनिंग सेल, दैट इज द He was a Bera in his last part. बेरे ये काम करते हैं, शेफ करते हैं, सुपर शेफ करते हैं। Seema ji, I take objection to that. He has explained the mixing of the dressing so delicately. He has explained it so delicately, you can imagine the flavors coming in. एक्चुअली मेरी हर सैलेड क्लास में यही करते हैं, इनको मैं असिस्टेंट जैसे दे जाती हूँ। It's so well like an artist, you paint the whole thing. How nice. इसको थोड़ा सा ये पहुंच देते हैं। जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था ना मिक्स करना, वो जेंटली हम लोग करते हैं, तो आज के बाद सीख गए हैं कि किस तरह से करना। थैंक यू मिस्टर सूद। इसमें हम थोड़ा सा इसको सजाने के लिए हम लोग ये थिक क्रीम से वाइट इसमें डाली थी ना, थिक हाँ 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 हाँ, वो सब मिक्स हो गई ना इसके अंदर। अब इसमें हम ये डाल देते हैं, अनार डाल देते हैं इसमें। यदि आपके पास में कोई और फूल है तो वो भी आप डाल सकते हो, फूल से एक्चुअली काफी अच्छा भी लगता है। एडिबल फ्लावर्स मतलब और कोई मत डालिए, जो नहीं खा सकते वो वाला मत डालिए। एडिबल फ्लावर्स में जैसे कि आपके मोरिंगा के फ्लावर्स हैं, वो भी आप डाल सकते हो। सीजन में नीम का फूल भी आता है, वो काफी कड़वा होता है लेकिन बहुत ज्यादा फायदा करता है, वो भी आप इसको सजाने के लिए डाल सकते हो, पर वो सिर्फ मार्च में निकलेगा। तो जो भी आप जैसे मैंने बताया उसमें से कुछ भी आप लेके इसको सजाने के लिए डाल सकते हो। तो ये तो दो तरह का ड्रेसिंग हो गया, ये टैटू उधर। अच्छा, तीसरा वाला जो सैलेड है वो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। मैंने तो देखिए पास्ता सैलेड है ये, इसमें मैक्रोनी पास्ता है। तो मैक्रोनी का ये जो है वो ये कई लोगों को ऐसे मिथ होता है कि ये सब इसका मैदे का बनता है। तो यदि आप इटालियन खरीदोगे ना तो वो मैदे का नहीं बनाते, वो लोग तो डरम व्हीट का बनाते हैं, जो कि एकदम वाइट व्हीट होता है, एंड विद वो उसके छिलके के साथ ही होता है, जैसे हमारा होल व्हीट होता है उसी तरह से होल व्हीट होता है, लेकिन वो एकदम वाइट होता है। तो कई लोग कहते हैं हम तो नहीं खाते पास्ता क्योंकि उसमें, लेकिन आप देखिए, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी इटालियन पास्ता, पर वो इटालियन जो आप खरीदोगे तो उसमें हमेशा डरम व्हीट के साथ ही और तरह तरह के उसमें जो आते हैं। तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे वो हम मैक्रोनी पास्ता यूज करेंगे। वो पड़ा भी है, जगह ले आना मैक्रोनी का, मैक्रोनी उबाल के रखना। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें सिर्फ फ्रूट्स डलेगा। ये वाला जो है अपना इंडियन स्टाइल का है, इसमें सब फ्रूट डलेगा,
इसमें आप ये थोड़े टाइट वाले, इसमें केला या संतरा वगैरह नहीं डालेंगे। इसमें हम जैसे मैं बेर भी ले आई थी, मैंने कहा तो बेर डाल देंगे। तो ये मैंने करके रखा है, लेकिन काटा पाटा नहीं कुछ भी। तो इसमें पास्ता सैलेड में आप बेर हार्ड है, बेर को आप काट के डाल सकते हैं। इसमें आप एप्पल डाल सकते हो, केला मत डालिए उसके अंदर। और क्या डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हो, और अंगूर डाल सकते हो, पेयर्स भी। अमरूद, हाँ अमरूद, जैसे आपका अमरूद है उसका उसका वो बीज वगैरह निकाल के आप डालिए। इसको ये छिलका भी उसका हटा दीजिए, बीज, क्योंकि ये टाइट फ्रूट है। इसमें देखिए जो टाइट फ्रूट्स है ना वही आपको डालने, केला वगैरह नहीं डालिए आप, क्योंकि वो फिर मिशी मैची सब हो जाएगा। तो ये आप सारे मैक्रोनी पास्ता के अंदर मिला लीजिए, ये सारी चीजें, अनार भी डाल दीजिए, सब फ्रूट्स ही हैं उसके अंदर। और फिर आप उसके अंदर टोमेटो सॉस घर का बनाया हुआ वो डाल दीजिए, और थोड़ा सा उसमें चिली सॉस भी डाल दीजिए। जिससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा उसमें तीखापन आ जाएगा। और यदि आप चाहें तो उसमें चाट मसाला भी डाल सकते, तो वो काफी टेस्टी हो जाता है। एंड दैट ऑल्सो इज लाइक ए कंप्लीट मील, क्योंकि उसमें देखिए आपका गेहूं भी आ गया है और चार सारे फ्रूट्स उसमें आपने डाल दिए। तो ये फ्रूट्स का तो अपना ही महत्व है, तो उसमें आप ये भी बना सकते हो। आई एम सो सॉरी कि आई कुडंट प्रिपेयर ऑल दीज थिंग, क्योंकि वो इतना नहीं हो पाया मेरे से। तो आपने ये इतना कुछ किया है सीमा जी, यू डन सो मच अमेजिंग अलोन, एंड इतना कुछ कर लिया। थैंक यू अब सो मैं मच। नहीं, मतलब अलोन सुबह नहीं, भी मिस्टर सूद का भी पूरा सहयोग है, ऐसे मत बोलो। पूरा सही हो गया, पूरा सही, दोनों उन्हीं के को भरोसे ठीक तो है मैंने लिया है। मैंने तो आपको पता है मना कर दिया था कि नहीं, मैं हाँ। मेरी बहुत तैयारी है, मेरे पास फुल टाइमर नहीं है। तो हाँ। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि नहीं मैं करवा दूंगा, तो देन ही इज रेडी। तो इसलिए मैं तैयार भी हो गई, और ये मैंने सारा तैयार कर लिया। अब कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस सैलेड के बारे में, सीमा किसी जी, की न्यूट्रिशन वैल्यू पता जरा हो। जरा एक व्हाइट वाइन विनेगर के सैलेड ड्रेसिंग बताओ प्लीज। मैंने खरीदी है, उसका क्या करूँ ये नहीं समझ। कौन सा खरीदा आपने? व्हाइट वाइन विनेगर खरीदा। व्हाइट वाइन विनेगर, तो आप आपकी उसमें एडवाइस डालो पे। ना, उसमें अब ऑलिव ऑयल लो ना It's okay. एक्स्ट्रा। हाँ, उसको ऐसे ही मत पी जाना आप ना ना। नहीं, आप उसको ऐसे ही बॉटल में वो डाल लो, विनेगर डाल लो। मैंने देखो मैं उसमें भूल गई थी, उसमें मुझे विनेगर डाल सकते हैं उसके बदले, और या तो आप उसमें नींबू का रस डाल सकते हो। तो आप विनेगर डालो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालो, सॉल्ट एंड पेपर डालो, और लिटिल बिट ऑफ हनी और शुगर। बस ये 4-5 चीजें ही। इसमें मैं एक चीज मिस कर गई थी, वो मैं आपको फिर से बता रही। तो उसमें इसीलिए ना उसका इमल्शन नहीं तैयार हो, क्योंकि जब उसको हिलाते हैं ना तो सिरके के या ये जो वाइन विनेगर के साथ मिलके उसका अच्छा इमल्शन बन जाता है। तो आप उसको यूज करो। बस सिर्फ 3-4 चीजें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, रेड वाइन विनेगर, और आपके सॉल्ट एंड पेपर एंड हनी और शुगर। बस Oh, ये great. 5 चीजें, ये Great. बेसिक वही है। जी Seema ji, people want to, the members want to know how kale leaves can be used in a salad. केल वाला जो कौन सा, जो लंबी सी जाती है चाइनीज, उसको कहते हैं केल? नहीं, जो चाइनीज कैबेज तो फर्क होती है। Kale is हाँ more like fibrous leaf, you know, it's a dark green leaf. हाँ। It's a leafy thing, only something it's as fibrous as Chinese cabbage only. अच्छा, नहीं देखिए जो बहुत रफ है ना वो तो शायद खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो मैंने आपको ये बताई ना पॉक चॉय, वो भी यदि थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना तो वो रफ हो जाती है, खाने में नहीं ठीक लगती। उसको तो स्टर फ्राई, इसीलिए ये बेबी वाली है, बेबी पॉक चॉय मैंने मंगवाई। तो इस आप देखिए एडिबल है, केल तो बिल्कुल एडिबल है, लेकिन आप उसके नरम पत्ते लीजिए। थोड़ा सा भी हार्ड हो जाएगा ना वो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि आप after this is over, could you just share a list of edible flowers with us on the group so that members can have some knowledge. एक तो पैंजी हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, आपने नेस्टर्शियम बता दिया। हाँ, मैं आपको खिजाना बताती हूँ पूरी। एक्चुअली मेरा ये पूरा एक आर्टिकल था जो किचन गार्डन की सुविनियर में छपा था। यदि आप चाहो तो मैं इसका कॉपी आपको भेज दूँ।
आप भेज दीजिए, मैं उसको वेबसाइट पे भी डाल दूंगी, अपना सोसाइटी की जो वेबसाइट है, एंड विल शेयर इट अमंग्स द मेंबर्स आल्सो, दैट विल बी वेरी नाइस। कहते हैं नेकी और पूछ पूछ। पेरीविंकल आल्सो इज एडिबल। बताया ना उन्होंने, सुचिता ने, चाय का। वैसे मंजू जी, आप उनके जूस थेरेपी का इतना तारीफ कर रहे हैं, तो आपके पास अगर रिकॉर्डिंग आ गई है सीमा जी, तो वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज। ये मैंने इसमें डिफरेंट ड्रेसिंग तो मैंने बताया, सॉल्ट, पेपर एंड हनी और शुगर, नेचुरल शुगर। अच्छा, दूसरा जो है आपका, इसमें आप यदि चाहें ड्रेसिंग में तो गार्लिक का फ्लेवर भी दे सकते हो। जो लोग गार्लिक पसंद करते हैं तो उसका गार्लिक का आप एक गार्लिक का जूस निकाल के उसमें मिक्स कर सकते हो। इसके अलावा भुना हुआ जीरा भी अपन इंडियन टाइप का बनाना चाहें तो वो भी आप ड्रेसिंग में यूज कर सकते हो। अच्छा, ऑयल का तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें देखिए वेजिटेबल, इसमें कई तो उबाल के डालनी पड़ती है, ब्लांच करके, कई वैसे ही डालनी पड़ती है। नट्स और सीड का भी मैंने, लेग्यूम्स का भी आपको बता दिया। एडिबल फ्लावर्स का मैं आपको बताऊंगी। उसमें देखिए, एक तो नेस्टेशियम है, एक लिलीज है, लिलीज को भी खा सकते हैं, और हिबिस्कस तो खाते ही हैं, हिबिस्कस का फूल, रोजेस, रोजेस तो आता ही एडिबल में है। ऑरेंज ब्लॉसम, जो शुरू शुरू में नींबू के फूल आते हैं या ऑरेंज के फूल आते हैं, वो भी आप उसको भी खा सकते हो। जैस्मीन फ्लावर ऑल्सो इज एडिबल, क्रिसेंथेमम इज ऑल्सो एडिबल। लेकिन ये देखिए, ये जो है ना, ये इनका इनका स्वाद नहीं होता इतना अच्छा, जैसे अपने इसका रोज का होता है ना, वो वैसा नहीं स्वाद। नेस्टेशियम का भी स्वाद अच्छा है, लेकिन ये एडिबल फ्लावर्स में आता है, हमारी गुल वगैरह, लेकिन वो थोड़ा सा कड़वा सा होता है, वो इतना एडिबल है लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं। अच्छा, एप्पल ब्लॉसम, लेवेंडर, लेमन फ्लावर्स जैसे मैंने आपको बताया था, जेरेनियम्स, डेजीज, स्कॉश ब्लॉश, ये जो आपके कद्दू हैंग हो गया वीडियो। ये पूरा का पूरा। पर सीमा जी, इसमें इसके अंदर वी हैव टू बी केयरफुल कि हम ये बाजार से ऐसे खरीद के ना लाएं फ्लावर्स, बिकॉज दे नहीं मे नहीं बी यूजिंग एनी नहीं, पेस्टिसाइड, इट हैज देखिए टू बी होम ग्रोन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो, ऐसा है ना कि हम लोग किचन गार्डन के मेंबर्स हैं, तो वी आर सपोज टू ग्रो ऑल दीज थिंग्स। यदि आप बाजार वाले देखिए, उसमें तो वो स्प्रे भी करते हैं, कहाँ कहाँ से 10 हाथों में होता हुआ फिर आपके पास आता है। यदि आपके घर में ये हो रहे हैं ना, तभी आप इसको इस्तेमाल करिए। और ये तो पेंडेमिक के दिनों में तो और भी ज्यादा जरूरी है। वैसे भी हम लोग नहीं खाते हैं बाजार के, लेकिन ये जब आपके अपने घर में हो तब आप इसको खाइए। हाँ, कोई और आपका क्वेश्चन? एक जने पूछ रहे थे मस्टर्ड सॉस से ड्रेसिंग बता देते आप। नहीं, मस्टर्ड सॉस भी आप डाल सकते। देखिए, ये फ्लेवर में आता है, जैसे फ्लेवर है ना मस्टर्ड, मस्टर्ड का जो आता है ना लिक्विड, जिसको हम उसमें डालते हैं, क्या कहते हैं, सैंडविचेस वगैरह में भी डलता था, तो जो मस्टर्ड का लिक्विड आता है ना, वो आप इसमें डाल सकते हो। देखिए, फ्लेवर्स में आपका काली मिर्च का तो डलेगा ही, थोड़ी सी काली मिर्च। इसके अलावा आप उसमें अपना भुना हुआ जीरा, ये भी अपना इंडियन स्टाइल का जो है, वो भी आप इसमें, वेस्टर्न ड्रेसिंग है लेकिन भुना हुआ जीरा भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा रोजमेरी, रोजमेरी अपना जो कोई भी हर्ब इसके अंदर जाएगा। इसमें ऑरिगेनो, रोजमेरी, इसमें ये बहुत अच्छा लगता है आपका सेलरी, सेलरी की पत्तियां बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसको आप सुखा के रख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही उसमें डाल दीजिए, तो उसकी भी फ्लेवर बहुत अच्छी। तो फ्लेवर जो है ना, वो मस्टर्ड की तो बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। तो ये फ्लेवर का आपका अपना एक लाइकिंग है, जैसे आपको ये वाला फ्लेवर पसंद है। अब जैसे कोई लोग गार्लिक नहीं खाते, लोग गार्लिक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। एक टोटा आप निकाल दीजिए, एक कली का, वो पूरा फ्लेवर उसके अंदर बैठ जाएगा। तो काली मिर्च के अलावा, काली मिर्च तो डालेंगे, उसके कोई भी फ्लेवर आप अपनी मर्जी से डालें। ये सुनीत हमारी मेंबर है, वो पूछ रही हैं
कि किनोआ का सैलेड, तो आई थिंक किनोआ तो जैसे अगर हमने होल व्हीट आपने बताई या राइस ब्लैक और रेड जगह भी किनोआ। तो देखिए ग्रेन्स जो है ना, वो मैंने आपको बताया, जौ है, बाजरा है, उबला हुआ, जौ, बाजरा, ज्वार, गेहूं, और ये वाइट राइस जो मैंने बताया, इवन रेड राइस जो साउथ वाला है, वो भी आप डाल सकते हैं। ग्रेन में ये सब चीजें आप डाल लेते हैं बार्ली। कहाँ से आ रहा है डिस्टर्बेंस दीपा? कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी के टीवी ऑन है शायद। So it was really nice. Any more questions, members? आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया सीमा जी। Vivek, please ask everybody to open up their cameras, take a group photograph, please. And Jyoti, please give the thanks, vote of thanks कर दो आप, ज्योति। Okay. Yeah, sure. मैम आपका सैलेड बोल आप अपने सामने रखेंगी तो एक पिक्चर के लिए अच्छा हो जाएगा। Oh, so beautiful. Wow, that makes a very colorful picture. Just hold on, give me a minute. Thank you. Thank you, Vivek. Thank you very much, Seema ji. Very, very interesting, very, very colorful, very, very healthy session. और हमें पता चला कि और चीजों की तरह सैलेड की भी एक हिस्ट्री होती है। जब आपने शुरू किया तो इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और एक मेरे लिए ये नया था कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को बाहर नहीं रखना चाहिए। यूजुअली हम बाहर ही रखते हैं, बट आपने ये बताया, मुझे लगता है और भी कई मेंबर्स के लिए ये नई चीज होगी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को वो रैंसिड हो जाता है अगर बाहर रखें तो। और सरसों के फूल, मूली के फूल, मटर के पत्ते, ये सब सैलेड में डाल सकते हैं। इट वाज सो इनोवेटिव एंड सो हेल्दी। सो ड्रेसिंग्स की भी इतनी सारी वेरिएशंस। थैंक यू सो मच फॉर दिस wonderful session, and we are looking forward to have you more often with different ideas, जैसा कि मंजू जी ने बताया। तो मुझे लगता है हम भी मंजू जी जूसेस का क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। Edible flowers is next on the list. Yeah. So सीमा जी के पास खजाना है पूरा, तो हम उस खजाने में से थोड़ा थोड़ा तो लूटना चाहेंगे ना। थैंक यू वेरी मच। सर्टिफिकेट ज्योति जी, सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। जी, वो सीमा जी, appreciation of what you've done today, उसके लिए हमारी तरफ से a token of appreciation in the form of a certificate from Floriculture Society Noida. Thank you so much. आपके लिए। हाँ, और Thank ये you very, very much. मैंने रखी भी आपके लिए दिखाने के लिए। जी जी, इसको जब आप निचोड़ते हैं ना तो इसका जी। छिलका मत फेंकिए, आप छिलका मत फेंकिए, इसको सुखा के उसको ग्राइंड करके यू कैन फ्लेवर आ जाती है खाने में, उसको भी आप इसके ऊपर छिड़क सकते हो, इसके स्किन को सुखा के पाउडर। जी जी, मैंने इसका मामलेट बनाया है सीमा जी, ये टैंजरीन्स का मैंने मामलेट बनाया है। मुझे ना ये रह के चीजें याद आती। I would like to just make a thank you. Remember 20 years back we had another such salad session. By whom? Manju, we came to your house and we learned how to make salads 20 years back. Oh, मैं पूछ रही हूँ by whom?
That's so nice of you to remember, Juhi. Thank you so much. And a little reminder again to everybody to join in and give their gardens for competition. Ghar baithe hi, you will be appreciated by all our members. And I think this is a very good opportunity. Corona times hai, isliye hum physically nahi mil sakte. Lekin we must share whatever we have done, our knowledge, our innovations with our members. Thank you ever so much, Mrs. Seema. बहुत ही अच्छा लगा. Thank you. Thank Yeah. you. And special thanks to Mr. Sood as well. Yes, yes, वो तो भूल ही गए थे. Yeah, special thanks to him. हाँ नहीं, I would also like to thank him. आप तो इतना टेस्टी सैलेड ही खिला दोगे ना उनको. हाँ, तो दोनों रात में यही खाएंगे ना फिर. My son and my husband. Yeah, आज उनका खाना हो गया. जी जी. Thank you for calling me and for your patience. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Pleasure is all ours. Vivek ji, thank you very much. Thank you.